Hello everyone. In this video we are going to discuss millets or coarse grains. So both are slightly different, but in most of the books or articles you might see the author using them interchangeably. Okay, दोनों में थोड़ा सा difference है, but you can still interchangeably use both the terms, right? So coarse cereals या coarse grain and millets, so they are recently in news because the year 2023 has been declared as International Year of Millets, and also because our Finance Minister Nirmala Sitharaman has rebranded the name millets as Sri Anna. So we'll be discussing about the millets. So what are millets? What are the benefits? What are the initiatives taken by the governments, taken by the Indian government to promote millet production and consumption? So let us start the topic with the meaning of the terms. What do you mean by coarse grain and what do you mean by millet? Okay. So coarse grain refer to cereal grains other than wheat and rice, or those primarily used for animal feed or brewing. So राइस एंड व्हीट प्राइमरली हम लोग कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं. सो अदर देन राइस एंड व्हीट जो भी ग्रेन्स हैं, सो दीज आर स्मूथ ग्रेन्स. ओके, राइस एंड व्हीट आर कंसिडर्ड एज स्मूथ ग्रेन्स क्योंकि उनका सरफेस स्मूथ. देन योर अदर ग्रेन्स अदर देन राइस एंड व्हीट दे आर considered as coarse grains because of their surface roughness. Coarse grain. Now coarse cereals or coarse grains include maize, sorghum, oats, barley, pearl millet, finger millet and other minor millets like fox millet, proso millet. वो सारे तुम्हारे millets, right? See, maize, barley, oats along with the millets. So millets are warm season crops. So oat जो है तुम्हारा, barley जो है, these are not warm season crops. तो ये खरीफ crops नहीं है, ये रबी crops हैं. So maize, barley, oats and millets combinedly they are called as coarse grain because of the roughness of the surface. तो इन सबको coarse grain बोलते हैं because primarily consumption के लिए भी कर सकते हैं, but primarily they are used as fodder या पोल्ट्री फीड या पिगरीज के लिए हम लोग फीड की तरह यूज करते हैं, या फिर ब्रीविंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सो विस्की बनाने के लिए या बियर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. सो कोर्स सीरियल्स में तुम्हारे मिलेट्स भी आते हैं. अदर देन मिलेट्स यू आल्सो हैव मेज, बार्ली एंड ओट्स. इन सबको कोर्स ग्रेन बोलते हैं. जब मिलेट्स बोलोगे तो मिलेट्स में मेज, बार्ले, ओट्स कंसिडर नहीं किया जाता है. सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मिलेट्स. सो मिलेट्स में So millets are highly varied group of small seeded grasses. So these are small seeded grasses which grow in warm season. Temperature तुम्हारा ज़्यादा होता है during the growth season. So maize, barley and oats, they are not considered as millets, but they are considered as coarse grain along with the millets. Millets भी coarse grain के नीचे ही आते हैं. So coarse grain जब तुम बोलते हो तो थोड़ा broad हो जाता है. Millets specifically your small ग्रेन ग्रासेस जो तुम्हारे सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, अदर माइनर मिलेट्स, सो दे आर कंसिडर्ड एज मिलेट. सो लेकिन तुमको बाद में भी इवन इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई विल बी यूजिंग देम इंटरचेंजेबली, बट तुमको प्राइमरी डिफरेंस पता होना चाहिए. ओके, यू शुड नो द प्राइमरी डिफरेंस. नाउ सो इट वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज India's finance minister Nirmala Sitharaman during the union budget she used the term Sri Anna or the best of all grains. उसका meaning the best of all grains है. तो she used Sri Anna instead of millets which are often referred as poor man's grain. तो ये गरीबों का खाना माना जाता है because millets are primarily grown in poor agroclimatic conditions. So गरीब लोगों का खाना माना जाता है. इवन सो अभी तो बहुत सारे लोगों के पास अभी उनका इनकम इंक्रीज हुआ है, बट इन 1970s, 60s, 70s majority of the rural area were
depending upon millets for their calorie intake. So her rebranding of millets which are often referred derogatorily as poor man's grain. तो millets को गरीबों का मोटा अनाज बोलते हैं हिंदी में, दिस इज कॉल्ड मोटा अनाज. सो इसको ना पुअर पीपल्स मील की तरह कंसिडर किया जाता है, तो उसको फिर से इन्होंने रीब्रांड किया है. ओके, एंड these millets are often listed as neglected and underutilized crop species not long ago. So पहले recent past में इनको poor man's grain या फिर इनको underutilized, बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन नहीं था, they were neglected category. So हमारे अभी भी ऑयल सीड प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, मिलेट प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम है. दे आर ऑफन नेग्लेक्टेड. प्राइमरली हमारा सीरियल्स जो तुम्हारे स्मूथ ग्रेन जो तुम्हारा राइस एंड व्हीट है, प्राइमरली अभी भी हमारा फोकस उन दोनों पे ही है, बिकॉज आवर फूड सिक्योरिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट. सो अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स, एंड शी हैज प्रॉमिस्ड टू फंड इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च विच इज इन हैदराबाद. ओके, एंड सीतारामन सेड IIMR, Indian Institute of Millet Research, will become a center of excellence and global hub for millet research and development. कितना फंडिंग देंगे वो सब तो बताया नहीं है, but she has promised to fund the particular institute. So ये भी एक reason है why it was in news. And the other reason is that year 2023 has been it has been declared as International Year of Millets. So United Nations General Assembly adopted an Indian sponsored resolution. तो ये resolution start initiate इंडिया ने किया था. So इंडिया की तरफ से forward किया गया था through Food and Agriculture Organization and it has been adopted. तो 71 members का support मिला, तो इंडिया को मिला के 72 members, and this resolution was passed and the year 2023 has been declared as International Year of Millets. See, ये International Year of Millets या फिर हम लोग कोई पर्टिकुलर डे को अर्थ डे ऐसे बुलाते हैं. सो इट इज मेनली बिकॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस. तो मिलेट्स का अवेयरनेस बढ़ाया जाए लोगों में, बिकॉज मिलेट्स हैव मेनी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज, राइट. सो जनरली ये रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? जनरली ए मेंबर नेशन मेक्स ए प्रपोजल टू द यूएन थ्रू ए रिलेवेंट एजेंसी. जैसे इस केस में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया ने अपना रेजोल्यूशन फॉरवर्ड किया, एंड इंडियाज प्रपोजल to FAO went through internal approval before being presented to the United Nations General Assembly and was approved by 71 other countries. तो इंडिया को साथ मिला के 72 countries का अप्रूवल मिला, and this resolution was passed and year 2023 has been declared as International Year of Millets. So ये दो main reasons की वजह से recently it was in news. Now what are millets? See, I have told you, मैं बीच में मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, बट यू नो द डिफरेंस. हमने फर्स्ट स्लाइड में डिफरेंस बोला था. मेज, ओट्स एंड बार्ले, दे आर कंसिडर्ड एज कोर्स ग्रेन बट दे आर नॉट मिलेट्स. ठीक है. सो मिलेट्स आर ए ब्रॉड सब ग्रुप ऑफ सेवरल शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर. ये देखना, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर यानी खरीफ में ग्रो करते हैं. वार्म वेदर क्रॉप सच एज जोअर, बाजरा, जोर या सोरगम, बाजरा या पर्ल मिलेट. ओके, सो अगेन मेज इज, मैं कोर्स ग्रेन की तरह यूज कर रहा हूं. सी मिलेट्स या कोर्स ग्रेन. सो मेज एक्चुअली इज नॉट ए मिलेट. मेज मिलेट नहीं है, मेज इज ए कोर्स ग्रेन. मेज कोर्स ग्रेन है लेकिन ये मिलेट नहीं है. ओके, सो यहां पर एग्जाम्पल के मैंने यहां पर दिया है, लेकिन ये मिलेट नहीं है. ओके, मेज इज नॉट ए मिलेट, रिमेंबर. सो स्मॉल मिलेट्स अदर देन तुम्हारा मेन मिलेट्स क्या है? सोरगम, जिसको हम जोर भी बोलते हैं. देन यू हैव पर्ल मिलेट या बाजरा, एंड रागी. दीज आर द मेन मिलेट्स विच आर ग्रोन इन इंडिया. प्राइमरली ये ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है. अदर देन दीज थ्री देर आर ऑल्सो माइनर मिलेट्स विच आर ग्रोन इन स्मॉल क्वांटिटीज. बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में ग्रो करते हैं, पर ये मेजर मिलेट्स हैं. ओके, सो दीज आर यूज्ड एज फूड. सो दीज मिलेट्स आर यूज्ड एज फूड. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर
fuel, and the grain can be transformed into value added products. Okay, process भी कर सकते हो, food processing भी कर सकते हैं, biscuits भी बनते हैं. So millets are short duration warm weather crops. So these are grasses, Poaceae family से belong करते हैं. Now first example is jowar. Maize is not a millet, remember. Maize coarse grain है, millet नहीं है. ठीक है, मैंने वहां पर लिख दिया, लेकिन it is not a millet. Now sorghum और jowar, it is most commonly, I mean बोल सकते, commonly नहीं बोलना चाहिए, it is the most widely cultivated your millet. So सबसे ज़्यादा दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जोवर ही कल्टिवेट होता है. सो सोरगम और जोवर. सो यू कैन सी द ईयर, इसको जो है ना ईयर बोलते हैं. सो द ईयर इज लूजली पैक्ड. सो एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होता, ईयर इज लूजली पैक्ड. ओके, सो इट इज लूजली पैक्ड. देन वी हैव पर्ल मिलेट. सो पर्ल मिलेट में ईयर जो है, इट इज द ग्रेन्स आर टाइटली पैक्ड इन द ईयर. सो देखने से कुल्फी जैसा लगता है, राइट? सो पर्ल मिलेट. देन वी हैव फिंगर मिलेट. नाउ इट इज कॉल्ड फिंगर मिलेट क्योंकि ये इस तरह से दिखता है. सी, फिंगर्स को अगर तुम ऐसे फोल्ड करोगे तो इट लुक्स लाइक दिस. द अरेंजमेंट ऑफ द ईयर इज लाइक फिंगर्स, इसलिए इसको फिंगर मिलेट बोला जाता है. ठीक है, सो फिंगर मिलेट और रागी. नाउ वेयर आर दे ग्रोन? तो इंडिया में कौन से स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, कौन से कंडीशंस में ग्रो किया जाता है? सो इन इंडिया millets are mainly grown in poor agroclimatic regions, particularly rain-fed areas of the country. So poor agroclimatic regions means जहां पर तुम्हारे रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हैं, सो सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है. सो इंडिया का जो है अप्रॉक्सीमेटली 65 to 66% ऑफ द एरिया इज रेन-फेड. दैट मीन्स the crop depends upon the rainfall, natural rainfall. Artificially irrigation available नहीं है, so irrigation is artificial application of water. Natural application is your rainfall. So here the crops are dependent upon the monsoon. तो rainfall पे dependent है, artificially you cannot irrigate them. So 65 to 66% of the area is rain-fed area, and ये rain-fed area से around 40% जो इंडिया का food grain production आता है, it comes from the rain-fed area. So 40% of the food grain comes from rain-fed area. Now these crops are grown in areas with high temperatures and are called dryland crops because they are grown in areas where the rainfall is between 50 to 100 centimeters. So यहाँ पर rainfall भी कम होता है और temperatures भी ज़्यादा होते हैं. So high temperatures. So तुम्हारा राजस्थान हो गया, ओके, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका जहाँ पर ड्राईलैंड है, ओके, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है. सो दीज आर द एरियाज वेयर दे आर कॉमनली ग्रोन. सो दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो लेस सेंसिटिव टू सॉइल डेफिशिएंसीज, यानी सॉइल फर्टाइल होने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है इनको. दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ इनपुट, सो बेयर अमाउंट ऑफ इनपुट्स, यानी बहुत कम फर्टिलाइजर या पानी डालने की जरूरत है. वंस यू ब्रॉडकास्ट, जनरली जो ड्राईलैंड एरियाज में छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, मार्जिनल फार्मर्स, दे जस्ट ब्रॉडकास्ट द सीड्स. अदरवाइज यू कैन सो देम और ड्रिल देम विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स. बट बहुत ही स्मॉल फार्मर है, छोटा सा एरिया है, तो जनरली दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स. सो सॉइल फर्टाइल होने की जरूरत नहीं, यानी पुअर सॉइल कंडीशंस में भी ये ग्रो होते हैं, हाई टेम्परेचर्स, लो रेनफॉल कंडीशंस में भी ग्रो होते हैं. सो दे रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ इनपुट्स. तो ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मर को ज़्यादा इनपुट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है. वंस दे सो देम, ओके, आएंगे तो ऐसे ही ग्रो होते हैं. इसलिए हमारा पल्सेस का, ऑयल सीड का और मिलेट्स का प्रोडक्शन कम है, बिकॉज यहाँ से प्रोडक्टिविटी कम होता है एंड फार्मर्स ऑल्सो केयर लेस अबाउट दीज क्रॉप्स. ओके, स्टेप चाइल्ड वाला ट्रीटमेंट देते हैं इनको. So 6 states, namely Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Haryana and Gujarat accounts for more than 83% of the
मिलेट प्रोडक्शन। तो इन स्टेट से ही तुम्हारा मोर देन 80% मिलेट प्रोडक्शन आता है। सो मिलेट्स, इफ यू सी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मिलेट्स आर द ट्रेडिशनल फूड फॉर मोर देन 500 million पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। इफ यू सी, अफ्रीका में भी बहुत कंट्रीज हैं जो मिलेट्स का ना डो बनाते हैं, और बहुत ही जो तुम्हारे डोसा की तरह होता है ना, सो उस तरह से मिलेट्स को पानी के साथ मिक्स करके वो लोग वो डोसा की तरह बनाते हैं। तो बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में इट इज अ स्टेपल फूड। So maize is also there, but jowar and bajra, they are also one of the most important food in, see, especially in sub-Saharan countries, जहाँ पर rainfall बहुत ज़्यादा नहीं होता है। So globally, jowar is the most widely grown crop. तो US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सूडान, इन सब में जोअर ज़्यादा प्रोड्यूसर्स, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स और जोअर। और बाकी जो मिलेट क्रॉप्स हैं, जोअर, बाजरा एंड रागी, उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जोअर ही प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड वाइड। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। सो इंडिया अकेला दुनिया का 20% प्रोड्यूस करता है। एंड इफ यू कंपेयर इन एशिया, 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ मेजर जोअर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी। ये रैंकिंग जो है इसी ऑर्डर में, टॉप इज महाराष्ट्र, सेकंड इज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड एमपी। बाजरा में तुम आओगे तो फर्स्ट इज राजस्थान, देन यूपी, गुजरात, एमपी एंड हरियाणा। एंड अगर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में होंगे तो फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसी सीक्वेंस में है। सो दीज आर द मेजर जोअर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग इतना मिलेट्स बोल रहे हैं, क्यों इतना पॉपुलर, इतना पब्लिसाइज किया जा रहा है मिलेट्स को? व्हाई दे आर बीन पब्लिसाइज्ड सो मच? सो मिलेट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट रिच, दे आर नोन फॉर देयर न्यूट्रिएंट रिच कैरेक्टर and other characters like drought tolerance, because they can grow in areas where the rainfall is very low, यानी बहुत कम पानी में भी वो ग्रो होते हैं। फोटो इंसेंसिटिविटी, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन फोटो पीरियड, यानी शॉर्ट डे कंडीशंस में भी ग्रो हो जाएंगे, लॉन्ग डे कंडीशंस में भी ग्रो होंगे। एंड दे आर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज एज क्लाइमेट change is happening, global warming is going on, future के crops हैं। so these crops are considered as future crops, क्योंकि future में तुम्हारे temperatures इतने ज़्यादा raise होंगे कि तुम्हारे normal crops का production कम हो जाएगा, rice and wheat का production नीचे हो जाएगा। now these are the future crops, because as the production of rice and wheat will go down, तो हम लोग इतने सारे लोगों को food supply करना है, so we have to increase our millet production, because they are not that much affected by climate change, they are resilient to climate change। whereas wheat के केस में अगर रबी टेम्परेचर 1-2 डिग्रीज भी इंक्रीज होता है, if the rabi temperature increases by 1 to 2 degrees during February month, the wheat production will significantly go down। so हमारा जो food security है, that will be again a big question mark if we don't increase our millet production, because they are the climate resilient crops। तो इसीलिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना क्रॉप प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा ये हमको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? सो इन दिस पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फॉर द फ्यूचर ईयर्स वी आर प्रमोटिंग millets because they are the crops of the future, because they are resilient to climate change। now these crops offer a good potential in food processing industry and as a promising exportable commodity। so export भी कर सकते हो आप, process करके आप food को अलग अलग commodities में, biscuits में। so जोअर, so जितने भी तुम्हारे food processing या क्या बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो अभी भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जोअर एंड बाजरा के बिस्किट्स या उस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, चिप्स के चिप्स आते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज यूजिंग दीज मिलेट्स। नाउ देयर कल्टिवेशन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज फॉर प्रोवाइडिंग फूड
for human consumption, feed and fodder for animal and poultry, and use as fuel and industrial uses are very common. So obviously dryland area का जो economy है mainly, so agricultural economy is mainly dependent upon millets because these crops are common in drought prone areas. Now their nutritious value serves as an excellent tool to combat malnourishment. So इंडिया का एक और प्रॉब्लम है हिडन हंगर का. So हम लोगों को क्वांटिटी तो मिलता है, so our belly is full but our micronutrient requirement is not fulfilled. So उसको कॉम्बैट करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स चला रही है गवर्नमेंट, सब कर रहे हैं. बट मिलेट्स, दीज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन. सो तुम्हारे जिंक, कैल्शियम एंड आयरन, सो जितना तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है दे कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग मिलेट्स. सो माल नरिशमेंट का प्रॉब्लम, जो हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, उसको एलिमिनेट कर सकते हो बाय यूजिंग और प्रमोटिंग मिलेट्स. सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द लो रेनफॉल एरियाज. एंड मिलेट्स आर ऑल्सो सस्टेनेबल क्रॉप्स. क्यों? मिलेट्स में ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है. सो दे आर, यू कैन से the input requirement of these crops is very less. So farmer को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेंटेन करना या ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, so that is another benefit of these crops. So why the government is focusing more on coarse grains और millets? क्यों इतना फोकस कर रही है गवर्नमेंट कोर्स ग्रेन या मिलेट्स पे? So first is climate change. So climate change has affected production of wheat and rice. So climate change, specifically wheat का production पे बहुत effect होगा. As the temperatures increase, the production of wheat will reduce, right? So paddy and wheat, so these are the main cereals consumed. तो हमारा जो main food security है इन दोनों cereals पे dependent है, क्योंकि world wide भी these two are the main grains which are consumed as food. So as their productivity is under question during the climate change on during the next decade या जो future आने वाला है उसमें uncertainty ज़्यादा है, their production will obviously reduce. So cultivation of wheat and paddy will not be enough to meet the country's food security या फिर जो तुम्हारा फूड ग्रेन का डिमांड है उसको मीट नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज इन फ्यूचर द प्रोडक्शन विल गो डाउन. सो वी हैव टू सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव्स. हमारे जो ड्राई लैंड एरियाज हैं, जो डिग्रेडेड सॉइल्स हैं, देयर वी हैव टू कल्टिवेट आवर मिलेट्स. तो हमारा मिलेट्स को अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो फूड सिक्योरिटी विल बी देयर, अदरवाइज इट विल बी ए बिग क्वेश्चन मार्क. सो पैडी एंड व्हीट पे टोटली हम डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज इन फ्यूचर द टेम्परेचर्स विल ऑब्वियसली इंक्रीज एंड द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड बाय रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्शन है दैट विल रिड्यूस. नाउ मॉनसून, सो एराटिक मॉनसून्स ऑफ 2022 has increased the government's concern for the kharif season's yield. So the sowing of paddy and pulses was severely affected in most areas. So they are also grown as contingency crops. So millets are also contingency crops. So contingency crop क्या होता है? जब तुम्हारा main crop fail हो जाता है, when your main crop fails और sowing बहुत ज़्यादा delay हो जाता है because of delay in the monsoon, so you cannot grow the main crop now. So तुम कोई दूसरा क्रॉप ग्रो करते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप. सो यू विल सब्स्टिट्यूट द मेन क्रॉप विद सम अदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. सो दिस इज कॉल्ड कंटिजेंसी क्रॉपिंग. सो दे आर यूज्ड एज कंटिजेंसी क्रॉप्स. सो तुम शॉर्ट ड्यूरेशन मिलेट्स को ग्रो कर सकते हो और यू कैन ग्रो देम एज फॉडर ऑल्सो. सी, अगर तुमने ग्रो किया है मिलेट्स, अगर रेनफॉल बहुत ही कम है, सो इफ the rainfall is not enough to produce grains, you can use the vegetative matter as fodder for the animals. So dual purpose के लिए use कर सकते हो, that is there. And these are sustainable crops. So sustainable जो term हम लोग use करते हैं, that means we are preserving or we are conserving the resources for our next generation. So agriculture production के लिए जो main resources चाहिए वो क्या है? Water and soil.
सॉइल एंड वाटर के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. सो दीज टू रिसोर्सेज हैव टू बी कंजर्व्ड एंड दे हैव टू बी कंजर्वेशन करना है इन दोनों रिसोर्सेज का, एंड दे हैव टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द सेम कंडीशन एज वी रिसीव्ड देम फ्रॉम आवर प्रेडिसर्स. जो हमारे प्रेडिसर्स टंग ट्विस्टर है, सो जो हमारे प्रेडिसेसर्स हैं उनसे जो हमने जिस कंडीशन में लिया था वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज को, उसी कंडीशन में ज़्यादा डिग्रेड किए बिना वी हैव टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन सो दैट दे कैन कंटिन्यू द प्रोडक्शन. ओके, अगर ज़्यादा डिग्रेड कर दिया तो फ्यूचर प्रोडक्शन विल बी क्वेश्चन मार्क. सो कोर्स सीरियल्स या फिर तुम्हारे जो मिलेट्स हैं, दे यूज वेरी लेस अमाउंट ऑफ इनपुट. ओके, बहुत कम इनपुट यूज करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे डोंट डिग्रेड द सॉइल, ज़्यादा फर्टिलिटी को ज़्यादा एग्जॉस्टिव क्रॉप्स नहीं है. सो दैट इज वाई. सो दे आर ड्रॉट टॉलरेंट, फोटो इंसेंसिटिविटी एंड रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज. दैट इज वाई दे आर सस्टेनेबल क्रॉप्स. सो इन द सेम मैनर तुम्हारा पल्सेस हैं, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सेम कैटेगरी. सो लो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, क्योंकि फार्मर को ज़्यादा इनपुट डालने की जरूरत नहीं होती है तो फार्मर फ्रेंडली भी है. सी जैसे चिल्ली है, टोबैको है, वहाँ पर ज़्यादा इनपुट्स है, लेबर का कॉस्ट ज़्यादा होता है, राइट. तो इन क्रॉप्स के कंडीशन में ऐसा नहीं है. सो दीज आर वेरी फार्मर फ्रेंडली क्रॉप्स. इन what do I mean by that is they don't require much of input. ज़्यादा इरिगेशन देने की, ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स देने की जरूरत नहीं. एक बार डाल के छोड़ दो, वो अपने आप आ जाएंगे रेन फेड कंडीशन में, राइट. सो दे रिक्वायर वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर. सो इंक्रीज्ड कोर्स सीरियल प्रोडक्शन. सो गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स और कोर्स ग्रेन्स टू इंक्रीज. वो चाहते हैं कि इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो. सो कोर्स सीरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारा जो राइस एंड व्हीट पे जो प्रेशर है, सी वी मेनली डिपेंड अपॉन राइस एंड व्हीट, सो उसके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. सो द एरिया अंडर कोर्स सीरियल्स वाज 17.63 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2022 as against 16.93 million hectares in 2021. About 50 million tons of coarse cereals are produced in the country. Around 54 है, 54 के आसपास है. सो इसमें कोर्स सीरियल्स में भी सबसे ज़्यादा हम लोग मेज प्रोड्यूस करते हैं. सो ये तो टोटल है, कोर्स सीरियल्स का है, मिलेट्स का नहीं है, कोर्स सीरियल सब मिला के. सो सबसे ज़्यादा हम लोग मेज प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज पोल्ट्री फीड के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है. ये ह्यूमन कंजम्पशन भी है, लेकिन एज ए पोल्ट्री फीड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्रॉप. ठीक है. सो गवर्नमेंट के लिए भी सही है. क्लाइमेट चेंज के इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज दे आर रेजिलियंट क्रॉप्स, दे डोंट रिक्वायर मच ऑफ इनपुट, दे कैन बी ग्रोन इन द डिग्रेडेड एरियाज, ड्रॉट प्रोन एरियाज में ग्रो कर सकते हैं. दीज आर ऑल द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन मिलेट प्रोडक्शन. नाउ हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? सो व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स? So they have low glycemic index. So glycemic index क्या है? So it is a ratio of the amount of sugars released by any food compared to glucose. यानी ग्लूकोज जब तुम लेते हो तो शुगर एकदम बहुत ही फास्ट रिलीज होता है ब्लड के अंदर. So that is considered as 100. उसका वैल्यू जो है 100 हम लोग कंसिडर करते हैं. So when compared to that value, ग्लूकोज के वैल्यू से बाकी फूड आइटम्स का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज अ रेशियो ऑफ द शुगर रिलीज बाय एनी फूड मटेरियल कंपेयर टू ग्लूकोज. सो जो फूड बहुत धीरे धीरे शुगर को ब्लड में रिलीज करता है, दैट फूड इज गुड स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. ओके, लो ग्लाइसेमिक फूड कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर तुम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड कंज्यूम करोगे तो योर ब्लड शुगर लेवल विल शूट. ओके, सो वी हैव टू कंज्यूम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड सो दैट शुगर विल बी रिलीज स्लोली इनटू द ब्लड. सो दे डोंट कॉज अ स्पाइक इन द ब्लड शुगर लेवल. सो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दिस इज बेस्ट फूड. नाउ दे आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, जिंक एंड कैल्शियम. So nutrient rich है. So iron and zinc are the most common mineral deficiency which are found in food grains. So iron and zinc तुमको मिल रहा है इधर से, तो these are nutrient rich food also. So dietary fiber
सो तुम्हारी डाइट में फाइबर होगा तो कोलन में जो तुम्हारा फूड है इट कैन मूव फ्रीली, सो तुम्हारा बॉल मूवमेंट्स प्रॉपर होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीजेस नहीं होंगे. ओके, सो दैट इज अनदर बेनिफिट. नाउ so soluble fiber produces viscous substances in our gut that traps the fat and helps in reducing the cholesterol level. ये भी एक benefit है. So millets are also rich in phenolic compounds like ferulic acid and catechins which are acting as antioxidants. They act as antioxidants, so they protect our body from harmful oxidative, free radicals से हमको protect करते हैं. So gluten-free grain of millets make it viable choice for people with celiac diseases. So intestinal disorders हैं. So celiac diseases are intestinal disorders of small intestine. So उससे भी बचाता है. So millets which are gluten-free, they can be consumed by the people who have celiac disorders. So coarse grain act as probiotic feeding microflora in our ecosystem. So they are also acting as probiotic. तो हम लोग वो पीते हैं ना छोटा सा जापानीज क्या आता है, प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है. आई डोंट रिमेंबर द नेम. आई डोंट रिमेंबर द शेप ऑफ द बॉटल इज समथिंग लाइक दिस. इस तरह से याकुल्ट आई रिमेंबर इट नाउ. इस तरह से प्रोबायोटिक ड्रिंक आता है. सो दे हैव बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर आवर गट. सो इन द सेम वे millets are also acting as probiotic. Then so those are our health benefits of consuming millets. Now uses of core cereals. So millets या core cereals को और किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? Mainly what are their uses? So fodder के लिए primarily, so जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है उस एरियाज में कैटल को फीड की तरह खिलाने के लिए मिलेट्स यूज होते हैं. सो कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स लाइक सोरगम एंड पर्ल मिलेट इन सम नॉर्दर्न स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी इज प्राइमरली डन फॉर फॉडर पर्पस, जहाँ से तुम्हारा बहुत ज़्यादा मिल्क आता है. सो कैटल को फॉडर की तरह खिलाते हैं, ये एक मेन पर्पस है. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. सो सोरगम कैन बी यूज्ड फॉर माल्टिंग, सो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं. हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप प्रोड्यूस, हाई फ्रक्टोज सिरप स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए. सो कॉर्न से भी बनता है. सो दिस इज फ्रॉम सोरगम, हाई फ्रक्टोज सिरप स्टार्च. जैगरी बेकरी प्रोडक्ट्स. पर्ल मिलेट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रेविंग और माल्टिंग. स्टार्च प्रोडक्शन, बेकरी, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड की तरह यूज होता है. मेज इज यूज फॉर ब्रेविंग, स्टार्च, बेकरी, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड एंड ऑल्सो बायोफ्यूल. सो तुम्हारा इथेनॉल भी प्रोडक्शन होता है. यूएस में प्राइमरली इथेनॉल इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज. सोर्स ऑफ फीड. सो डिमांड फॉर कोर सीरियल्स फॉर एनिमल एंड पोल्ट्री फीड इज ऑन द राइज. तो इंडिया में मेनली जो पोल्ट्री फीड है दैट इज मेड फ्रॉम योर पोल्ट्री फीड जो है दैट इज फ्रॉम मेज. मेज को यूज करते हैं पोल्ट्री फीड की तरह. पिगरीज को भी खिलाते हैं. नाउ सो दोज आर द यूजेस. Now coming to initiatives taken by the government to support cereals and millets. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सीरियल्स को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए. सो फर्स्ट इज इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन इन सिम. सो दैट इज ए सब पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सो अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिस प्रोग्राम इज taken and 300 crore rupees was sanctioned in 2011-12 as a sub part of Rashtriya Krishi Vikas Yojana for promoting millets as nutri cereals. So to promote the millets, this program was started as a sub part of Rashtriya Krishi Vikas Yojana. The scheme aimed to demonstrate the improved production and post harvest technologies in an integrated manner with visible impact to catalyze the increase in production of millets in the country. So प्रोडक्शन में एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करके अगर वो दिखा सो दैट दे कैन शो इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विच कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि फार्मर्स को पता चले कि ओके इसमें कितना बेनिफिट है
ताकि वो लोग मिलेट का प्रोडक्शन को ले एंड द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स विल इंक्रीज. देन नेशनल मिलेट्स मिशन, so it was launched in 2007 to promote production and consumption of millets. So basically awareness programs हैं among the farmers, so they are to promote millet production among farmers. So increase minimum support price, तो obviously farmers को entice करना है, so minimum support price is one of the primary policy tool which is used by the government to manipulate the production. So हमारा गवर्नमेंट प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए MSP को एक टूल की तरह यूज करती है. So that is there. So whenever we want to increase the production of a particular crop, government increases the MSP and obviously farmers will choose that crop because there is a guarantee. So minimum support price को हाइक करके मिलेट्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, वो भी है. Then input support. So the government has introduced provision of seed kits, inputs to the farmers and building value chains through farmer producer organizations and supporting the marketability of millets. So all these things are done at different levels to support millet production. Now there is another initiative which is called Millet Startup Innovation Challenge. Millet Startup Innovation Challenge. So it is an initiative to encourage young people to solve the different problems involved in millets. So millets में बहुत सारे millet production में बहुत सारे problems हैं, उनको कैसे solve करें, उस चीज़ में youngsters को, young minds को involve करने के लिए they have started a Millet Startup Innovation Challenge. It is an initiative to encourage young minds by nurturing their creative thinking and innovative strategies in millet sector to address concerns and create new techniques to position millets as alternative staples across the world. So अभी staple क्या है? Wheat and rice is the staple. So उन millets में जो main limitations हैं उनको हटा के, so to involve young people to solve the problems in millet sector and convert them as staple food crops across the world. So innovation is highly encouraged in finding solutions to the problems, problem statements in the millet sector, mainly dehulling. यहाँ पर हम लोग grain को husk से separate करते हैं. Hulling and separation, shelf life को increase करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. So these are the areas in which innovation is needed. So इन sectors में dehulling and separation में, फिर shelf life को कैसे increase कर सकते हैं, उस चीज़ में innovations मांग रहे हैं. I mean they are asking for the youngsters, young people to come and solve these problems in the particular areas. Shelf life को और कैसे improve किया जाए या separation को और effective कैसे किया जाए, और innovative packing for millet based products. So biscuits हैं, innovative packing so that to attract more consumers or customers. Then there is MIRA, so Millet International Initiative for Research and Awareness. So India has introduced a draft to launch a global initiative to encourage consumption and production of millets. So the draft of the proposed initiative, that is MIRA, was placed during the first agricultural deputies meeting under Agriculture Working Group G20 at Indore, Madhya Pradesh on February 13th to 15th 2023. So G20 के मीटिंग में जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप है वहाँ पर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था प्रपोजल को. सो मीरा विल एम to connect millet research organization across the world while also supporting the research on these crops. So इंडिया में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, उसी तरह से यूएस में कोई होगा, चाइना में कोई होगा, दूसरे कंट्रीज में जितने भी मिलेट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, उन सबको ओके, सो दे विल connect these research institutes. So MIRA will aim to connect millet research institutes across the world and support the research in millets. So besides setting up a web platform where to connect different research institutes and holding international research conferences, the plan is also to raise awareness
फॉर प्रोमोटिंग द कंजम्पशन ऑफ, सो लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाओगे कि हेल्थ बेनिफिट्स ये सब है, ये सब है, सो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, तो जब डिमांड है, जब उसका प्राइस ज्यादा हो रहा है तो फार्मर्स भी उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। सो देन फंडिंग कहां से मिलेगा, सो फॉर मीरा टू टेक ऑफ इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट द सीड मनी, इनिशियल मनी जो है इंडिया देगा, उसके बाद G20 मेंबर जो है मेंबरशिप फी के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो मीरा का जो सेक्रेटरीट है दैट विल बी इन दिल्ली, ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्रोग्राम एंड वे फॉरवर्ड, क्या फ्यूचर में क्या कर सकते हैं मिलेट को प्रमोट करने के लिए, मिलेट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, व्हाट कैन वी डू टू प्रमोट द मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो फर्स्ट देयर इज अ नीड टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मोर मिलेट्स बाय प्रोवाइडिंग प्राइस सपोर्ट, एमएसपी को और इंक्रीज करो ताकि फार्मर्स को इंसेंटिव मिले। सो इट हैज न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्यों, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज देयर बिकॉज वी डोंट ऐड एक्सेसिव इनपुट्स, हम लोग इरिगेशन ज्यादा नहीं देते, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं, सो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू भी तुम मिलेट प्रोडक्शन कर सकते हो, ओके। एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी है, मालनरिशमेंट को भी तुम रिमूव कर सकते हो, एंड ड्राईलैंड एरियाज में फार्मर्स को स्टेबल इनकम मिलेगा। सो देयर इज इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। सो वन वे टू डबल द फार्मर्स इनकम इज टू एनकरेज मिलेट फार्मिंग in the areas where diversification is needed. So crop diversification is also promoted by the government. Government भी promote कर रही है crop diversification को, especially in the पंजाब हरियाणा बेल्ट जहाँ पर राइस एंड व्हीट जो तुम्हारा क्रॉपिंग पैटर्न है that has degraded the soil and water. So वहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट कर रहा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए या फिर ऑयल सीड्स, मिलेट्स। So as a crop diversification program, you can promote millets in the areas where there is distress also. जैसे विदर्भा वाला रीजन है जहाँ cotton farmers they are in distress and this is where maximum suicides also happen. तो वहाँ के farmers को तुम millets as an alternative दिखा सकते हो. So they can go for millets as an alternative to cotton. Then so the need of the hour is to dedicated programs with proper training and capacity building initiatives that urge the farmers to move away from loss making crops to millets. जहाँ पर loss making crops जो cultivate कर रहे farmer उसको छोड़ के millets को produce करें which will be in demand and also have high nutritional value, तो उसका price भी ज़्यादा होगा. Lack of awareness about the millets and their health benefits can be addressed through campaign, okay, education and promotion से. Improving the availability of millets in the markets and making them more accessible to the consumers can encourage the consumption. So accessibility भी होना चाहिए. So obviously accessibility अभी है, but हर मार्केट में हर जगह पर अगर accessibility होगा तो consumption increase होगा, consumption increase होगा तो demand, and if that there is demand, obviously there will be increase in production. So perception of millets as poor man's food, ये थोड़ा सा चेंज करना है. गरीबों का खाना है तो उसके बेनिफिट्स को ज़्यादा हाईलाइट करो ताकि वो जो नोशन है ना पुअर मैन्स फ्रूट है, पुअर मैन फूड है, वो जो साइकोलॉजिकल वो है एस्पेक्ट वो निकल जाए लोगों से कि ये गरीबों का खाना है ऐसे बोल के, ठीक है. सो वो भी एक है, प्रमोट करना है. देन improving processing techniques and increasing the availability of value added millet based products. So सिर्फ अनाज यानी फूड प्रिपरेशन में, नॉर्मल फूड प्रिपरेशन में नहीं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, ऐसे जो बाकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एनकरेज करना है सो दैट easily promote हो. Okay, so those people who don't want to cook and eat on their own, they can go for these value added products. So small farmers in hilly regions and dryland plains who are among the poorest households in rural area will cultivate millets only if they get good returns. So MSP, market availability, ये सारी चीजें जब improve होंगी तो automatically people in these areas will start to cultivate them. Then adequate public support can be can make millet cultivation profitable, ensuring supply for the PDS and ultimately provide nutritional benefits to a wide section of the population. So अगर government के जो भी तुम्हारे
फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा फूड सिक्योरिटी है उसमें मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंक्लूड करोगे, सो अभी भी है बट और ज़्यादा इंक्लूड उसको, उसका प्रोपोर्शन अगर तुम ज़्यादा बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली देर विल बी डिमांड एंड ऑब्वियसली देर विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. सो वी कैन प्रमोट द मिलेट प्रोडक्शन बाय इंक्लूडिंग मिलेट्स इन सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स, जहाँ पर मिड डे मील स्कीम है या फिर तुम्हारा इंटीग्रेटेड ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम्हारा फेयर प्राइस शॉप में मिलता है, वहाँ मिलेट्स का अगर प्रोपोर्शन तुम इंक्रीज करोगे तो फ्री में मिल रहा है तो ऑब्वियसली लेंगे. राइस के बदले राइस थोड़ा कम मिल रहा है, वीट थोड़ा कम मिल रहा है और मिलेट ज़्यादा मिल रहा है, तो वट एवर इज गिवन फॉर फ्री पीपल विल डेफिनेटली टेक द, एंड इट इज़ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर राइस एंड वीट. राइस एंड वीट से ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दे आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. ऑब्वियसली इट विल प्रमोट द मिलेट कंजम्पशन. सो दीज आर द way forward, or you can say steps that can be taken to promote millet production and consumption. So that was about millets. So it is recently in news, so there can be a question in the mains examination also. Prelims and mains दोनों में आ सकता है. So it is a very important topic. Go through it thoroughly. So again, millets and coarse grains दोनों में difference है. स्टार्टिंग के स्लाइड्स में मैंने बताया था दोनों में क्या डिफरेंस है. मेज इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मिलेट, मेज इज ए कोर्स ग्रेन. वैसे ही ओट एंड बार्ली आर आल्सो कोर्स ग्रेन्स, दे आर नॉट मिलेट्स. मिलेट्स में तुम्हारा मेनली क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी, दीज आर द मेन मिलेट्स. देन देयर आर माइनर मिलेट्स, प्रोसो मिलेट हो गया, तुम्हारा फॉक्सटेल मिलेट है, वो बाकी माइनर मिलेट्स भी हैं. तो मेन मिलेट्स तुम्हारे कौन से हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी. मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन में क्या डिफरेंस है, मिलेट्स आर स्मॉल ड्यूरेशन वार्म सीजन क्रॉप्स. ओके, जबकि ओट एंड बार्ली क्या है, तुम्हारा वार्म सीजन क्रॉप नहीं है. दे कैन, मिलेट्स कैन बी ग्रोन इन लो रेनफॉल एरियाज, जहाँ पर रेनफेड एरिया है वहाँ पर तुम मिलेट्स को ग्रो कर सकते हो. मेज को इरिगेशन की ज़रूरत है. मेज इज़ नॉट ए मिलेट, मेज इज़ ए कोर्स ग्रेन क्रॉप. सो दैट वाज ऑल अबाउट मिलेट्स. थैंक यू वेरी मच.